So vaccination and immunization is one of the very important aspect, and its importance all the more increases in lieu of present situation when corona is creating a havoc. हमारी हालत ख़राब हो रही है. Everyone is worried whether we or anybody of us will be suffering from corona. 1 minute time I'll give you. Okay, children. So I said that is the immunization, the importance of immunization or vaccination is all the more become so important nowadays when the dangerous disease corona is spreading like anything. And most of the people, when we ask them when the life will become normal, everyone is saying once we'll get vaccinated, then only we'll start to come to school, or then we'll go to open our business or our shop or our office and all. Now what is the vaccination? See, in a simple terms we can understand the vaccination. The working of vaccination is in a way that suppose a house is there where some minor theft is taken place. A छोटा सा, the theft can be as small as किसी का साइकिल उठा के ले गया कोई. We generally live in a colony and our things are lying outside, even inside the gate. So it is not a difficult task for any robber to jump over the wall and take the cycle and go away. तो मान लीजिए कि it is my house और वहाँ पे एक साइकिल रखी है और साइकिल कोई चोरी करके ले गई. Now when I next day when I get up and I say, अरे साइकिल कहाँ गई, and it will be a worry. Then what will happen? I will just asking the people, I will just complaining to our society, बोले ये क्या हो रहा है, चोरी हो रही है, हम इतना पैसा दे रहे हैं, this much of this thing. Why don't we keep a guard for whole night? So the guard will guard the area. वो बोलेंगे साहब ऐसा गार्ड तो है हमारे पास. Then क्या करना होगा? Then it is my duty. बोले आप अपने लेवल पे क्या कर लेंगे हम सब? हम एक गार्ड रख लेंगे अपने घर के सामने for the night. Every night that person will come at 8 o'clock and morning 8 o'clock or 6 o'clock he will go with, and we are just dealt with him, and a guard is been appointed. Once the guard is appointed and then we see that there is no theft taking place in the whole colony, then I may think yaar meri cycle was costing somewhere about 6,000 rupees, and every month I am paying 3,000 rupees to the guard only. 2 महीने में तो साइकिल के पैसे वसूल हो जाते. Why unnecessarily I am keeping this guard? So when I make it sure that there is no theft taking place anywhere in the colony, I may ask that guard कि भाई साहब अब आप जाओ, अभी हमको आपकी ज़रूरत नहीं है. And no sooner I remove the guard, within the next week another theft take place somewhere in the colony or in my own house. That fear will again regenerate. Then क्या हुआ? Again I'll ask some guard, or my family people may advise me to keep a dog. So ये dog and this guard, what they are just like antibodies. Okay, and वो जो time है जिसके लिए हमने उसको रखा, that is the memory. And before the first memory get lapsed, if the second dose is administered, the memory enhances. तो क्या हुआ? This is a child, this is a person. मान लीजिए ये person, इस person को कोई भी बीमारी हो रही है. Say for example, इसको क्या हो रहा है? Any one disease जैसे पोलियो. So no sooner a child is born, we give him a vaccine. पोलियो का ड्रॉप पिला देते हैं. It is sweet, और ये जरा सा उसको पिला दीजिए, खुशी खुशी पी लेगा. ठीक है, दौड़ ठीक है. Now we know that the effect of the vaccine of polio lasts for the 1 month. आज की डेट है 16 सितंबर 20, हमने उसको वैक्सीन दिया फर्स्ट. 16 October 20, before its memory gets lapsed, we'll get the second dose. This time the memory will further increase. 3 months के लिए बढ़ गया हमारे. तो अक्टूबर के लिए नवंबर दिसंबर जैन. तो 16th Jan 21, third dose will be given. Then suppose its impact increases for 2 years.
So 16th Jan 23, the 4th dose will be given, and the impact may last forever. Now, क्या दे रहे हैं? What vaccine? What is vaccine? What is vaccine? A vaccine contains either dead pathogens of a specific disease for which our body can make antibodies. Dead pathogens of a certain disease for which our body can make antigen. दो चीजें जरूरी हैं. Our body should make antigen. पहले उसको पहचाने, देन उसके लिए एंटीजन बनाए, एंटीबॉडीज बनाए. सॉरी, एंटीजन तो उसका प्रोटीन है. एंटीबॉडी बनाए. एंड तीसरा, टू कीप इट मेमोराइज्ड. First of all, it should be recognized by the body. Secondly, antibody should be made by the body. And third, that it should be remembered for a certain period. If these three things are there, we can make vaccine. If any one of these is missing, we cannot make vaccine. If a disease is there which our body cannot recognize, हमारे घर चोर आया लेकिन कुछ चोरी करके गया, हमको पता ही नहीं पड़ा, तो हम काहे को चिंता करें? Such a big institution and there are so many people working, and suppose किसी ने गेती फावड़ा इधर रखा है, next morning you come and you don't find it, तो बोलेगा यार मैं यहीं रख के गया था. कोई दूसरा बोले अरे यार तेरे को याद नहीं होगा, वहाँ पे देख ले, वहाँ देख ले, किसी और ने हटा दिया होगा, वो उसने चौकीदार ने कहीं और रख दिया होगा. And then you take them your other set and start working and you just forget it. तो आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पे कुछ चीज़ हुई है. ठीक है, you got 5 pens and you are using only 2 pens, 3 pens you kept somewhere, और उनमें से एक पेन गायब हो गया, one is flicked away by your maid servant. वैसा करते नहीं है प्लीज, है ना. You just think, या फिर वो झाड़ू में निकल गया, मेड को याद नहीं रहा, उसने सोचा ये कचरा होगा, नीचे पड़ा हुआ था, she just threw it and you also forget it because you were not using it. So you are not recognized, that means पता भी नहीं पड़ेगा कि ऐसा कुछ पैथोजन को और बॉडी कैन नॉट रिकॉग्नाइज, देन विल नॉट बी एबल टू मेक वैक्सीन. Secondly, our body should be able to make antibody for it. There are several pathogens for which our body cannot make antibodies. Recognize तो कर लेती हैं, but antibodies नहीं बना पाती. Our body can recognize them, but our body fail to produce antibodies. तो फिर किस बात का वैक्सीन? मतलब आप देख कर रहे हो कि आपके घर में चोरी हो रही है, लेकिन आप उसको रोक नहीं पा रहे हो, फिर क्या कर सकते? फिर क्या कर सकते? कुछ नहीं, जस्ट कीप ऑन वीपिंग, रोते रहो, अपना दुखड़ा सुनाते रहो लोगों को. यही होगा ना. वैक्सीन इज देयर. इफ वैक्सीन हैज टू बी मेड, तो पहली बार पैथोजन आप इंट्रोड्यूस करोगे जिसको आवर बॉडी शुड रिकॉग्नाइज, एंड सेकंड इट शुड बी एबल टू मेक एंटीबॉडीज, एंड थर्डली इट शुड बी मेमोराइज्ड एंड केप्ट इट फॉर सर्टेन पीरियड. If you are not able to do any one of these three, the vaccination will useless. ठीक है. और बॉडी अगर पहचानते ही नहीं है पैथोजन को, तो what antibodies it will make? Even if body recognizes but it failed to make antibodies, what difference does it make? We will not be able to make any sort of protection against it. And the third one is that if we don't remember it, then it will be that amnestic, that is the secondary response that will increase. And by the time secondary response that our body will make antibodies and all, it will take very long, and then we may suffer from a disease. ठीक है. तो एनामेस्टिक रिस्पॉन्स जो होना चाहिए उसको जल्दी से होता है. कब होगा? जब मेमोरी में पड़ा रहेगा. अगर मेमोरी में नहीं है, अगेन वही याद करिए ना आप कि मम्मी को पर्टिकुलर रेसिपी बनाना था एंड मम्मी भूल गई उसको, तो नेक्स्ट टाइम अगेन शी हैज टू ओपन द वेबसाइट, और वहाँ जाकर उसको पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा. आधे घंटे की वीडियो है, 20 मिनट की वीडियो, उसको पूरा देखना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा कितना शक्कर बोला, कितना नमक,
जो भी चीज़ें आइटम जो भी कुछ उसके अंदर बोला वो सारी चीज़ें नोट डाउन करना पड़ेगा सीक्वेंस वाइज एंड देन शी विल ट्राई अगेन. तो इट विल टेक टाइम नो. Whereas if it is, if she was already remembered it, it will be quick. तो वैक्सीन बनाने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी. नाउ अब वापस आते हैं एक चीज़ के ऊपर. ये जो चीज़ हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हाउ आवर बॉडी रिकॉग्नाइजेस एनी पैथोजन, that every pathogen has got a specific type of protein, a specific set of protein, they are called antigens. Every पैथोजन हैज गॉट सर्टन स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन. हमारी बॉडी में कुछ खास तरह का एंटीजन मिलता है जो गधे में, कुत्ते में, बिल्ली में, गाय में, बकरी में, सुअर में, एलिफेंट में किसी में नहीं मिलता. Our body has a certain type of antibody, certain type of protein which is found only and only in our body. We have to find out that what particular that antigen is there which our body can recognize or anyone's body. Now body has, all the living beings has that ability कि वो कुछ खास तरह के एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डिपेंडिंग कि उनमें है. तो if that antigen is there then our body. now हम क्यों पैथोजन डाल देते हैं डेड पैथोजन, क्योंकि हमारे को वो वाला प्रोटीन कहाँ से डालेंगे. चलो क्या करते हैं, थोड़ा सा बैक्टीरिया कल्चर कर लेते हैं एंड देन वी जस्ट मेक देम वीकेंड, वी मेक पेस्ट आउट ऑफ इट. सारे बैक्टीरिया मर जाएं लेकिन प्रोटीन तो बचे रहेंगे ना, देन उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे. दैट वाज एन ओल्ड टेक्निक. दैट कैन बी गुड फॉर बैक्टीरिया, दैट कैन बी गुड फॉर प्रोटोजोआ, बट इट कैन नॉट बी गुड फॉर वायरस because the body of virus has only 2 things, that is the protein and DNA. और जब वायरस इन्फेक्ट करता है तो प्रोटीन तो बॉडी में जाता ही नहीं है, इट इज ओनली द DNA which is going. So अगर आप बैक्टीरिया को, वायरस को मारेंगे कैसे, पहले भी वायरस मरा हुआ ही रहता है. आउटसाइड द बॉडी वायरस इज इनएक्टिव, तो मारने का तो प्रश्न ही नहीं है. अगर वायरस का प्रोटीन गया साथ में DNA भी गया तो DNA विल बी एबल टू इन्फेक्ट आवर बॉडी एंड विल नॉट बी दिस वैक्सीन विल बी ऑफ नो गुड. बैक्टीरिया का DNA जाके इन्फेक्ट नहीं कर सकता, वायरस के DNA में है वो कैपेबिलिटी. इट कैन ऑटोमेटिकली गो इनटू द आवर बॉडी एंड इट कैन एसोसिएट इटसेल्फ इनटू आवर बॉडीज DNA एंड इट कैन शो द एक्ट, बट दैट इज नॉट ट्रू विद द एनी अदर. तो वायरस के साथ में क्या करेंगे, तो साइंटिस्ट लोग सोच रहे होते थे. अच्छा एक बात करते हैं, मान लीजिए मेरे घर में चोर आया, तो जरूरी है क्या मैं चोर को देखूं तभी बिलीव करूं, और इज इट ऑल्सो नेसेसरी दैट इफ सम ऑफ माई थिंग्स आर लॉस्ट दैट मीन्स समवन इज थेफ्टेड. ये भी कोई जरूरी नहीं है. हो सकता है कोई मेरा इतना खास दोस्त हो कि उसको उठा के ले जाए, बोले कि यार मेरे को तो क्या ही बोलेंगे सर, बोल दूंगा मैं यार मेरे को जरूरत नहीं मिलेगा. तो ये जस्ट लाइक द साइकिल, नेक्स्ट डे कम्स एंड आफ्टरनून ही कम्स एंड रिटर्न भी. दिन भर मैं पैनिक में रहा, आफ्टरनून ही कम्स एंड गिव मी द साइकिल. बोला अरे यार राजू मेरी साइकिल में ले गया था, अब मेरे को अर्जेंट काम. नाउ व्हाट, नाउ आई कैन नॉट कंसिडर हिम एज अ थीफ. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हम पैथोजन को देखेंगे और बॉडी विल कम अक्रॉस द पैथोजन, देन ओनली बॉडी विल बिलीव दैट द पैथोजन से कम, देन ओनली बॉडी विल मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम. ये भी तो हो सकता है कि मेरा घर का वरांडे में जहाँ साइकिल रखी थी, साइकिल चोरी नहीं गई है, लेकिन एक आदमी आया था, आई कैन सी हिज फुट मार्क्स और सम ब्लड स्टेन और सम अदर सॉर्ट ऑफ थिंग. ठीक है, मैं अपना घर साफ रखा है लेकिन वहाँ पे कोई गंदे के पैरों के निशान दिख रहे हैं, किसी का शू मार्क दिख रहा है, फुट मार्क दिख रहा है, विच इज़ नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ आवर बॉडी. हमारे घर में जितने भी लोग हैं उनके किसी से पैर से मिल नहीं रहे. शाम को हमने पूछा, मतलब पता किया, बोले यह तो अपने घर का तो है ही नहीं. So it will also be an indication now that some foreign body is coming. So it is not necessary that we have to see and believe. It is not necessary that we always see the video recording and then believe that thief had come. There some indication can also tell us
what was the indication? Maybe the foot mark, maybe the some items we must have left by chance. वो जर्दे की पुड़िया रख गया होगा वहाँ पे, गिर गई होगी उसकी जेब से, या कुछ और चीज़ें गिर गई होगी, या वो कहीं और से चोरी करके लाया होगा, उसने मेरे घर में खोला होगा, someone's wallet he flicked and he came, sat down there and he emptied it and all the important things they had taken and he left the empty wallet in my home. Then it will clearly give an indication that someone had come, some unwanted person. That can also be an indication. What? The same system we are following in our body. Instead of putting the entire weakened bacteria or pathogen, which may be sometimes dangerous to us if it is not properly weakened or it may be active. हम weakened pathogen नहीं डालेंगे, but we will put only the antigen protein. Instead of putting weakened pathogen, which was an old method, now we are putting on the antigen protein. And protein can't make us sick. प्रोटीन हमको थोड़ी बीमार कर सकता है, प्रोटीन थोड़ी हमारे को बीमारी देगा. We are suffered because of the bacteria or protozoa or virus or any other type of pathogen, not because of a particular type of protein which entered in our body. तो हमने वो रिकॉग्नाइज करा सबसे पहले. से फॉर एग्जाम्पल टेटनस कॉज करने वाला कोई वायरस है, तो हमने क्या किया, टेटनस का टेटनस इज बैक्टीरियल डिजीज, तो वो बैक्टीरिया जो है उस बैक्टीरिया को हमने रिकॉग्नाइज करा कि उसमें कौन सा प्रोटीन है, विच प्रोटीन आवर बॉडी रिकॉग्नाइजेस एंड मेक्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट. एंड देन व्हाट वी डिड, वी आर्टिफिशियली स्टार्टेड मेकिंग दैट प्रोटीन ओनली, and that protein is injected in the body. What a noble strategy! What a noble strategy! मतलब अगर आपको किसी को चिंता में डालना है, किसी आदमी को अच्छे भले घर के अंदर रहने वाले आदमी को आपको चिंता में डालना है, आप क्या करें, उसके घर में कुछ जूतों के निशान छोड़ दें या कोई पुराना आइटम डाल दें या कुछ ऐसा डाल दें, वो उठ करके आएगा, उसको छोड़े कौन आया था मेरे घर पे. विल इट बी ट्रू और नॉट? कोई भी चिंता करेगा. तो हमने भी क्या करा, हमने वो प्रोटीन छोड़ दिए उसकी बॉडी के, एंड नाउ बॉडी विल स्टार्ट वरिंग. बॉडी रिकॉग्नाइजेस दोज एंटीजन प्रोटीन एंड इट कम्स इन एक्शन. इमीडिएटली इट स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट. बॉडी डजंट नो वेदर इट इज बैक्टीरिया और इट इज अ प्रोटोजोआ और इट इज दिस थिंग, वो पूरा है या कि केवल उसका जूते का निशान ही है. बॉडी को नहीं पता, जैसे हमें नहीं पता था, हमने देखा नहीं था कोई थीफ को आते हुए घर में, बट वी जस्ट सॉ द फुटप्रिंट. Similarly, when body comes across those type of antigen protein, body start making antibodies against it, whether in true sense the bacteria or a pathogen entered or not entered. And those protein in no way can make us sick. तो ये तो बहुत अच्छा काम हो गया भाई, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी. दिस इज वॉट वी हैव टू डू इवन इन दिस केस. ये जो हमारा कोरोना वाला है. नाउ प्रॉब्लम क्या है, मैंने कहा था वैक्सीन वी कैन मेक ओनली व्हेन 3 थिंग्स आर देयर. पॉइंट नंबर 1, दैट आवर बॉडी शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट. हम सोच रहे हैं, अभी ढूंढ रहे हैं, कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसको आवर बॉडी कैन रिकॉग्नाइज इन द कोरोना वायरस. सपोज रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है, देन वी हैव टू लुक फॉर वेदर आवर बॉडी कैन मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट. नाउ इट मे बी पॉसिबल कि वो एंटीबॉडी नहीं बना रही हो, इंटरफेरोन नहीं बना रही हो, तो हमको वो चीज़ ढूंढना है. ठीक है. और तीसरी चीज़ हमको ढूंढनी है कि वो कितने टाइम तक याद रखती है बॉडी. वी हैव टू सी इफ ए पर्सन हैड कोरोना, क्या उसको दूसरी बार कोरोना होता है कि नहीं होता है. होता है तो कितने टाइम बाद में होता है. कौन से मंत्री जी थे सर वो जिन्होंने बोला कि अभी मैं कोरोना से ठीक हो गया, दोबारा कोरोना आया, उसके आया था ना कल परसों संसद में, है ना.
वो ये कह रहा था कि मेरे एक बार तो हो चुका कोरोना एंड अगेन रीअकर्ड and then he went for another testing and found that it is a negative report. तो ये तो इंडिया है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो we don't generally believe ऐसा कुछ होता है। तो आप समझ गए ना। नाउ वैक्सीनेशन के लिए एंटीबॉडीज योर बॉडी इज मेकिंग, सो इट इज अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अक्वायर्ड तो करिए आपने, क्या अक्वायर करा? प्रोटीन और वीकेंड बैक्टीरिया, वीकेंड पैथोजन। और उसके बाद योर बॉडी इज एक्टिवेटेड टू मेक दिस टाइप ऑफ व्हाट यू कॉल एंटीबॉडीज। तो सिंस एंटीबॉडीज इज एक्टिवली प्रिपेयर्ड बाय बॉडी, वी कॉल इट इज एक्टिव इम्यूनिटी। And this active immunity, when our body will prepare once we come across that pathogen, ठीक है। तो ये हो गया है ना। तो देखते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे क्या। अच्छा, उसके बदले में क्या है, देर आर सम केस, जैसे एंटी सीरम जहाँ पे हम दे रहे हैं, एंटी टेटनस सीरम और एंटी स्नेक बाइट सीरम, देयर आवर बॉडी इज नॉट मेकिंग एनी एंटीबॉडीज, सो वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द हॉर्सेस और फ्रॉम सम अदर एनिमल। तो उसको हम कहेंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन। ये देख लीजिए यहाँ पैसिव इम्यूनाइजेशन लिखा। अब मैं पढ़ देता हूँ उस पूरे पैराग्राफ को। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑफ वैक्सीन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी एंड द immune system. In vaccination, the preparation of antigen protein of the pathogen or inactivated weakened, या तो वो प्रोटीन होगा एंटीजन प्रोटीन और वीकेंड पैथोजन होगा। देख रहे हैं ना, उसको हम क्या कहेंगे, वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी एंड द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन टू न्यूट्रलाइज दैट। अगर हमने वीकेंड पैथोजन डाले, हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लग जाए, ठीक है। तो वो क्या, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। द पैथोजन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट एंटीजन एंड न्यूट्रलाइज द पैथोजन अगेंस्ट ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट memory, that is the B and T cell. B cells in the form of antibodies and T cell in the form of memory, and recognize the pathogen quickly and subsequent exposure and overwhelm the invaders with massive production of antibodies. तो फटाफट खूब सारे एंटीबॉडीज बनाएंगे और उनको ख़त्म कर देंगे। If the person is infected with some deadly microbes to which quick immune response is required, as in tetanus, then we need to directly inject the preformed antibodies. अब वहाँ एंटीबॉडी हमारी बॉडी नहीं बना रही है, हम प्रीफॉर्म रेडीमेड ला रहे हैं बाहर से, तो इसलिए उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने कहा पैसिव इम्यूनिटी। तो ये देखिए, directly injected in the preformed antibodies or antitoxin, a preparation containing antibodies to the toxin. Even in case of snake bites, the injection which is given to the patient contain preformed antibodies against snake venom, ठीक है। तो snake venom के अगेंस्ट वो काम आ रहा हो। This type of immunization is called passive immunization because it is not made by us, rather we are getting from some other organism. Now recombination DNA technology, ये वर्ड जो है वो हमारे 11th 12th चैप्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन पॉलीपेप्टाइड और ऑफ द पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट। अब मैंने यहाँ लिख दिया ना कि वो बैक्टीरिया का वो प्रोटीन जिसको एंटीजन कहते हैं विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर बॉडी, उसको हम कैसे बनाएंगे। प्रोटीन कोई फैक्ट्री में तो बनते ही नहीं, वी आर नॉट गॉट एनी फैक्ट्री वेयर द प्रोटीन आर मेड। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वो जीन जो रिस्पॉन्सिबल है टू मेक दैट टाइप ऑफ प्रोटीन, दैट जीन विल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पैथोजन एंड एड इट इनटू सम बैक्टीरिया और अ फंगाई एंड कल्चर इट इन द लेबोरेटरी and then that gene will be removed, that will be introduced into some foreign body और वो प्रोटीन बनाएंगे हमारे लिए, ठीक है। और उस प्रोटीन को फिल्टर करके हम वैक्सीन के फॉर्म में कैसे होता है वो सब हम 11th चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। दोबारा बोल देता हूँ, a protein responsible to make that a gene responsible to make that particular protein, antigen protein,
is extracted from the pathogen, introduced into some bacteria to get the multiple copy of that gene. Those genes are extracted and introduced into another set of bacteria, in which these genes will start making protein, and those proteins will be filtered and extracted, and then they are sold in the form of vaccine. So the process is very cumbersome. ठीक है ना, जितने भी वैक्सीन कोरोना के आ रहे हैं बाजार में, the work is being done. Normally to make vaccine it takes मतलब it takes a really long time. अब यहाँ हमारी तमन्ना है कि जल्दी से जल्दी आ जाए, सो हम क्या वैक्सीन तो बना लेंगे, नो डाउट, बट what are the ill effect going to be, that will not be able to study in such a short time. ठीक है, कोई भी मेडिसिन बाजार में आने से पहले कम से कम उसके खूब सारे ट्रायल होते हैं. फर्स्ट ट्रायल्स ऑन what you call rats, and then monkeys or guinea pig or something else, and then final trials on the people of poor country like India, Somalia, Ethiopia and all, जहाँ पे बीमारी भी है और उनका असर भी. कई कंट्रीज़ में ये दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ जानबूझ के लोगों को बीमार कर देती हैं, एंड देन दे हैव ट्रायल. एंड जितने भी हॉस्पिटल जहाँ लिखे रहते हैं रिसर्च सेंटर, वहाँ पे आपके ऊपर इस तरह के रिसर्च होते रहते हैं. ठीक है, इफ इट इज़ ओनली अ डिस्पेंसरी, उसको कोई रिसर्च नहीं करना, उसको सिर्फ मेडिसिन डिस्पेंस करनी है. एंड इफ इट इज़ अ रिसर्च सेंटर, दे विल गो ऑन डूइंग सम रिसर्च, तो वो आपको देंगे. अभी दिया था उन्होंने और मालूम पड़ा था कि सम वैक्सीन, एंड आफ्टर टेकिंग वैक्सीन सम पीपल जो है दे स्टार्टेड फॉलिंग सिक. तो ये रिसर्च हो रहे होते हैं. ठीक है, चलिए. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट. Next topic, allergies, we shall study in the next class. Thank you children, and I think I tried my level best to explain you, and you can watch this video once again, twice again if you want, and you will better understand it. One of the most interesting topic is mine, और मैं इस पर एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ जब मैं कोरोना की वैक्सीन की बात कर रही थी. Thank you children, bye, good day.